Hello students, welcome back to Math Stimulus because math is the music of reason. Here we are going to learn very interesting topic of calculus, that is differentiation. So let us start with the base of differentiation, chain rule. First we are going to learn what is derivative of dependent variable with respect to independent variable. If we have a function y is equal to fx, then x is called independent variable and y is called dependent variable, because as per the different values of x, y gets its values. If you are going to differentiate y is equal to fx, you will get dy by dx or f prime x. You can write in any ways. Secondly, if any function is represented in the form of x is equal to f of t, here t is independent variable, x is dependent variable. If we will differentiate here, we will differentiate x with respect to t and will write it as dx upon dt. If any function is in the form of z is equal to f of theta, here theta is independent and z is dependent on theta. If you are going to differentiate here, you will get differentiation of z with respect to theta and you can write it as dz upon d theta. If any function is in the form of w is equal to f of phi, again w is dependent on phi, and if you are going to differentiate here, you will get dw upon d phi. So now you are very well clear what is a dependent variable and what is independent variable. So फंक्शन जिस भी फॉर्म में लिखा हुआ है, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है तो यू विल गेट dy by dx. If z इज इक्वल टू थीटा है then you will get dz upon d theta. If w is equal to f of phi है, you will get dw upon d phi. Now move on. What are rules of differentiation? First rule, ये रूल आपने 11th क्लास में कर रखे हैं. दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉल. व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल इज differentiation of any constant term is a zero. Where what is this a? This a is a constant. Why differentiation of a constant term is zero? Answer of each y you have already get in 11th class by the first principle. जहाँ हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशंस फाइंड आउट किए थे, देयर वी हैव फाइंड आउट what is the differentiation of constant term, what is the differentiation of sin x, what is the differentiation of cos x. We have find out many differentiations with the first principle. There we have find the reasons. Now here we are directly using those results, and how will you, what are these results and how we are going to use these results, we are moving in this way. So first rule is differentiation of constant is zero. For example, differentiation of 10 क्या होगा? 0 constant, because here is no variable. If term is differentiation of 5 cube, again no variable here, तो constant term है ये और इसका differentiation 0 होगा. If I am considering example of differentiation of log 5, log 5 no variable also here. यदि कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो वो कांस्टेंट ही आपकी टर्म ट्रीट होगी. तो डिफरेंशिएशन ऑफ log 5 इज 0. Differentiation of sin 5, again no variable, 0 differentiation. Differentiation of 5a, a, children see, this is a is a constant term and we are going to differentiate with respect to x. अगर यहाँ x होता तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे. जब तक यहाँ वेरिएबल x नहीं है तो ये कांस्टेंट ही टर्म है आपकी. दिस इज अ कांस्टेंट 5a. सो डिफरेंशिएशन ऑफ 5a इज इक्वल टू 0. Differentiation of e raised to the power n, again no variable present, x is absent, so आपका differentiation होगा 0. तो हमने जाना है कि differentiation of constant term क्या होगा, हमेशा 0 होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखा हो. यदि वो absent है तो वो टर्म आपकी constant ही काउंट होगी, क्योंकि हम यहाँ differentiation x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. यदि किसी भी टर्म में यहाँ x प्रेजेंट होता तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल प्रेजेंट है. अदरवाइज
These all are constant terms and differentiation will be 0. What is rule 2? Rule 2 is differentiation of x raised to the power n is n x की power n minus 1 where n is a constant. ये रूल भी आपने पहले कर रखा है. x की पावर n मीन्स n x की पावर n माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल x की पावर -3/5, तो आप क्या करते हो, पावर आगे और एक पावर कम हो जाती है आपकी. तो n x की पावर n माइनस 1, दिस इज द डिफरेंशिएशन. सेकेंड एग्जाम्पल, x की पावर 5a. 5a इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, x की पावर n, तो डिफरेंशिएशन होगा n. आपका n आएगा यहाँ पर. दिस इज n x की पावर n minus 1. So if 5a, here a is not treated as variable. This is important point to be noted down. Next, recall. For the next rule, you recall differentiation of log x is 1 upon x. यदि हमें डिफरेंशिएशन log f का करना हो तो क्या होगा? If I am replacing this x with f, then what will be the effect on differentiation? Where f क्या है आपका? f एक फंक्शन है x का ही. डिफरेंशिएशन ऑफ log f होगा 1 upon f. लाइक log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x है, तो log f का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon f इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f. ये स्टेप यहाँ एक्स्ट्रा आएगा. So differentiation of log f is 1 upon f into differentiation of f. For example, मैंने एक एग्जाम्पल लिया log of 7x plus 4. Children see 7x plus 4, this is a function. तो हमें क्या करना है, log f का डिफरेंशिएशन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फॉर्मूला लगेगा 1 upon f. 1 upon f एंड आप फिर मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ f से, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 7x plus 4. यू विल गेट 7 upon 7x plus 4. तो इस स्लाइड में हमने 3 रूल किए हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 है, डिफरेंशिएशन x की पावर n x की पावर n minus 1 है, जिसमें हमारा ये पॉइंट x की पावर 5a, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन. यहाँ आपका 5 एक कांस्टेंट है, तो n पूरा का पूरा बाहर आ गया, n x की पावर n minus 1. log f का डिफरेंशिएशन 1 upon f into differentiation of f. Moving on, chain rule. What is chain rule? This is very important term in the base of differentiation. What is chain rule? Chain rule means differentiation of composite function. What is a composite function? You have learned recently in chapter 2. What are composite functions? Here we are going to differentiate composite function, then we'll use chain rule. Suppose I am having a function f of g of x. G of x. Here what is x? Independent variable. Y is dependent variable. So we'll find here dy by dx. So dy by dx क्या होगा बच्चों? ये होगा f prime gx into differentiation of gx. आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या f prime gx डिफरेंशिएशन ऑफ gx को आप g प्राइम x से भी आप लिख सकते हो. नाउ क्या हुआ, ये कैसे हुआ, थोड़ा कुछ कम समझ आया. चलो ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ एग्जाम्पल को समझते हैं. सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर. चिल्ड्रन सी हियर, व्हाट इज independent variable? This is x. This x is your independent variable. Y is dependent variable. You need to find dy by dx. See, first of all here x goes to sine. इस x goes to sine से पहले एक स्टोरी समझते हैं. Suppose we have a children which is locked in a room which has 3 doors. If we want to reach that particular child, so we will open these doors one by one. First we will open outermost door, then innermost first door, then innermost second door. So we have to open these doors one by one, then only we can reach up to that child.
here we have this x with us which is deep embedded, जिस तक हमने पहुंचना है. अगर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो हमने x तक पहुंचना है. अब देखते हैं x कितने दरवाजों में बंद है. सबसे पहले देखो x गया साइन के पास, x मूव्स टू साइन एंड बिकम्स साइन x, देन साइन x goes to square and it becomes sin x का whole square. This is a required function. तो सबसे पहले मुझे कौन सा दरवाजा खोलना है, स्क्वायर का, और फिर मुझे दरवाजा खोलना है साइन का. सो इसका मतलब मुझे यहाँ पर दो डिफरेंशिएशन करने होंगे. सबसे पहले मैं पावर के लिए डिफरेंशिएशन करूंगी, जो मेरी पावर 2 है, मैं पहले पावर 2 के लिए डिफरेंशिएशन करूंगी, मैं स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगी, उसके बाद मैं साइन के लिए डिफरेंशिएशन करूंगी. वन बाय वन आउटर मोस्ट डोर टू इनर मोस्ट डोर पर हम जाएंगे. सो dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का होल स्क्वायर. तो सबसे पहले आप 2 के लिए डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 2, दिस इज समथिंग लाइक फंक्शन की पावर n, तो पावर आगे आएगी, दिस इज योर n, और साइन x की पावर एक कम होगी और यहाँ आपके पास आ गया 1, तो 2 साइन x. अब आपने पावर की डिफरेंशिएशन की है, आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन x के लिए, साइन के लिए, तो आपके पास क्या बचा, साइन x. तो अभी आपको सेकेंड स्टेप में करनी है साइन x का डिफरेंशिएशन. ये हुआ पहला स्टेप आपका हुआ 2 साइन x, पावर का डिफरेंशिएशन हुआ 2 साइन x की पावर 1. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, so you will get finally 2 sin x का differentiation cos x. So now you are very much clear what is chain rule. Chain rule means one by one we need to open doors. So one by one we need to do the differentiation from outermost function to innermost function. We will do differentiation because we are moving like a chain here, so we are calling it a chain rule. Now again I am coming here on my definition. If y is equal to f of gx, differentiation would be dy by dx f prime gx. पहले आपने f के लिए डिफरेंशिएशन किया आउटर मोस्ट डोर पर, उसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ gx करोगे. सो ये आप कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन. यदि ये 2 की कंपोजिशन है, यदि 3 की कंपोजिशन होती तो आपके पास इनर मोस्ट का डेरिवेटिव और आ जाता. नाउ फर्स्ट रिकॉल algebra of differentiable functions. Children, this all algebra we have learnt in 11th class. What is it? Differentiation of constant term. Differentiation of constant term is 0. अभी मैंने आपको समझाया पहले ही. डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है. डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा u. What is u? u, v, w are the functions of x. So if we are finding differentiation of lambda u, this implies is lambda is a constant. Constant हमारा बाहर आ जाएगा और हम डिफरेंशिएशन करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x. यदि मुझे डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शंस के सम का, पहला फंक्शन u प्लस v, तो डिफरेंशिएशन du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx होगा. यदि मेरे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो मुझे डिफरेंशिएशन कैसा करना है, प्रोडक्ट रूल. आपको याद आया कि हमने प्रोडक्ट रूल कुछ किया था. प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो प्रोडक्ट रूल लगता है यदि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है. यदि दो फंक्शंस हमारे पास रेशनल फॉर्म में है तो हम क्या लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल. इसमें प्रोवाइडेड जब भी हमारा क्वोशिएंट फंक्शन होता है तो हमें सबसे पहले कंडीशन देखनी होती है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? आपका जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है आप उसका स्क्वायर करेंगे, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन न्यूमिरेटर du अपॉन dx माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर. तो ये आपका क्वोशिएंट रूल लगता है यदि हमारे दो फंक्शन रेशनल फॉर्म में है या तीन फंक्शन हमारे प्रोडक्ट फॉर्म में है. तो हमारे तीन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा. सपोज u v एंड w 3 फंक्शंस हैं, तो आप पहले डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का करेंगे, दो को छोड़ेंगे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, रिमेनिंग दो को छोड़ देंगे, फिर थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और रिमेनिंग टू को छोड़ देंगे. दिस इज वन मोर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन u.
1 अपॉन यू ये फंक्शन है आपका, u इज अ फंक्शन. सपोज करो 1 अपॉन x, x is also a function. 1 upon 2x plus 3, here 2x plus 3 is a function. 1 upon 7x minus 4, तो u is 7x minus 4. तो in that case आपको क्या करना है, यदि आपका 1 upon x होगा तो आप क्या डिफरेंशिएशन करोगे, you will treat it as x की पावर माइनस 1. पावर x आपकी बाहर आएगी -1 और एक पावर कम होगी, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन आपका बनता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो सेम वे यहाँ आपका बनेगा -1 अपॉन यू स्क्वायर. अब क्योंकि u आपका x का फंक्शन है तो आपको यहाँ पर du बाई डी एक्स निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंपोजिशन हो गया, x आपके कंपोजिशन में है, फंक्शन है. So -1 upon u square into du upon dx. To make it clear, we are moving on with the more examples. Here again I am continuing chain rule. For example, मेरे पास एक फंक्शन है y is equal to cos x square. Cos x square फिर थीटा में x स्क्वायर है. Children see here, यहाँ x सबसे पहले किसके पास जा रहा है, स्क्वायर के पास, तो it is going to become x square. Then x square is moving to cos and it is becoming cos x square. तो what are the two doors, x किन दो doors के अंदर बंद है, पहला cos, outer most is cos, then square. तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, पहले यहाँ cos के लिए डिफरेंशिएशन करोगे, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा. फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे थीटा के लिए, स्क्वायर के लिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वो होगा, वो आपके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x होकर. नाउ हियर इट इज क्वेश्चन 1. फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, ये हमारी एनसीईआरटी मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन है. क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड करो sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x. चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, इट इज u प्लस v, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन. तो आप सबसे पहले तो अलजेब्रा लगाओगे, डिफरेंट दिस विल इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स. अब यहाँ पे वही पहले पावर के लिए डिफरेंशिएशन करोगे और फिर आप साइन के लिए डिफरेंशिएशन करोगे, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स. लाइकवाइज आप सेकेंड टर्म में करोगे, पावर आगे 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स. इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है. एक और एग्जांपल लेते हैं, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ 10 रूट एक्स. ध्यान से देखो, सेक थीटा और थीटा की जगह आपके पास है 10 रूट एक्स. सो यहाँ की कंपोजिशन में देखो, x पहले स्क्वायर रूट के पास गया है, स्क्वायर रूट 10 के साथ और 10 रूट एक्स सेक के साथ. तो यहाँ आपके पास तीन फंक्शंस की कंपोजिशन है. सबसे पहले आप बाहर वाले दरवाजा, सबसे पहले सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ सेक थीटा टेन थीटा. तो सेक थीटा टेन थीटा, फिर डिफरेंशिएशन हुआ टेन थीटा का, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा, और फिर डिफरेंशिएशन होगा थीटा का. तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा सेक ऑफ 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट एक्स. अब जब डिफरेंशिएशन 10 रूट एक्स का करोगे तो 10 थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स. इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा. नेक्स्ट, let us consider few more examples. Differentiation of x की power 4 e raised to the power x log x. Children, you can see here three functions are there in multiplication. तो u v w, this is u v w. तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, दो को छोड़ा, फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का, रिमेनिंग टू को आप छोड़ देंगे, फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड फंक्शन का और रिमेनिंग टू को आप छोड़ देंगे, एंड यू विल कंप्लीट फॉलोइंग स्टेप्स. नेक्स्ट एग्जांपल है, हियर x की पावर 4 अपॉन log x रेज टू द पावर माइनस 7 अपॉन 3. ध्यान से देखो, इट इज समथिंग टाइप ऑफ f रेज टू द पावर n, f रेज टू द पावर n, और फंक्शन भी आपका जो है वो रेशनल फंक्शन है.
तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सबसे पहले आप पावर के लिए डिफ्रेंशिएट करोगे, एन एफ रेज टू द पावर n माइनस 1। आपने पहले फर्स्ट स्टेप की डिफरेंशिएशन की पावर के लिए, पावर आगे और फंक्शन की पावर n माइनस 1। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ f करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ f, और f फंक्शन आपका कैसा है, रेशनल फंक्शन है, x की पावर 4 अपॉन log x। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन में आपको याद आया क्या लगेगा, ये अपॉन फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आप लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो दिस इज योर क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला फंक्शन x की पावर 4 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विच इज इन डिनोमिनेटर, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो हमने वो वैल्यू रख दी और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट f? Differentiation of root f is 1 upon 2 root f differentiation of f। root f अगर आपके पास है तो differentiation 1 upon 2 root f। सेम f की पावर हाफ है, हाफ पावर आगे ली, एक कम करोगे तो माइनस में जाके 1 upon 2 root f बनेगा। इनटू आपको डिफरेंशिएशन ऑफ f फंक्शन भी करना है, f आपका हर जगह यहाँ फंक्शन है x का ही। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ 7 of 5.2 exercise. What this question says, find the differentiation of twice of under root cot x square. Children see, this is constant twice, this is root power, पावर के अंदर cot x square। तो सबसे पहले 2 को आपने as it is छोड़ा, एंड दिस इज रूट f, ये फंक्शन f है आपका यहाँ पर रूट f, तो आपका डिफरेंशिएशन होना 1/2 रूट f, f इज cot x square। और साथ में आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, तो cot थीटा x स्क्वायर इज थीटा, तो cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर थीटा, दिस इज थीटा। आपने cot के लिए डिफरेंशिएशन किया है, फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे स्क्वायर के लिए, x तक पहुंचना है आपको, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर किया तो 2x आया। So in these steps your differentiation is completing. First of all constant as it is, root के लिए हमने किया डिफरेंशिएशन, फिर cot थीटा का किया और फिर थीटा का किया, जो भी हमारे थीटा के प्लेस पर यहाँ प्लेस्ड है। Sorry. Now rule 5 is differentiation of e raised to the power f. Children recall, you know what is differentiation of e की power x. e की power x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन यदि हम x को f से रिप्लेस कर दें तो हमारे डिफरेंशिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये होगा हमारा e की पावर f इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f। दिस स्टेप विल बी एडेड वेयर f इज अ फंक्शन ऑफ x। सी एग्जांपल, यदि मुझे डिफरेंशिएशन e की पावर x करना है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e की पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 ही होता है, तो हमारे पास वही फॉर्मूला आ रहा है जो हमने ऑलरेडी हमें पता है। इफ वी आर हैविंग फंक्शन e रेज टू द पावर x और हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हमारे पास e की पावर f, फंक्शन की जगह मेरे पास है रूट x, तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, e की पावर f एंड डिफरेंशिएशन ऑफ f। e की पावर f और हमारे पास f जो रूट x है उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो मेरा ये आंसर आपको मिलेगा। यदि मेरा एग्जांपल है e की पावर साइन x रेज टू द पावर 7, हियर दिस इज योर फंक्शन f, तो यहाँ आप करोगे e की पावर f डिफरेंशिएशन ऑफ साइन f, e की पावर f, अब साइन f में पहले साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, थीटा के प्लेस पे आपका x की पावर 7 है, साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा, फिर आप करोगे x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन साथ में, और ये आएगा 7x की पावर 6। इस 7x की पावर 6 यहाँ आकर आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो रहा है। यदि क्वेश्चन आपके पास है e x रेज टू द पावर 7 sin x, तो आपके पास बेटा ये दो फंक्शंस f में हैं, u इंटू वी ई रेज टू द पावर f
और आपका फंक्शन f दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तब आपके डिफरेंशिएशन में क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो आप e की पावर f को ही देखोगे, e की पावर f का डिफरेंशिएशन e की पावर f एंड डिफरेंशिएशन ऑफ f, दिस इज योर f फंक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, x की पावर 7 इंटू साइन x, तो यहाँ आपका फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। यू विल कंसिडर इट फर्स्ट फंक्शन u, सेकेंड फंक्शन v, तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x की पावर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x हो गया, एंड सेकेंड फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो 7x की पावर 6 आएगा, एंड दिस वे यू विल गेट द कंप्लीट रिजल्ट। नाउ मूव ऑन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस, चिल्ड्रन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले रिवाइज्ड हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। लेकिन यदि थीटा हमारा f से रिप्लेस हो जाए, हमारे कंपोजिशन आ जाए, यदि मेरे पास हो साइन f, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क आएगा, यहाँ हम ये देखने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में फ़र्क आएगा बेटा, पहले साइन f का डिफरेंशिएशन आप सेम करोगे cos f, इसके साथ में वही जो अब तक हम करते आ रहे हैं हर स्टेप के अंदर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f, क्योंकि अगेन वही कंपोजिशन है, वन बाय वन हमने x तक ही जाना है। सो साइन f का डिफरेंशिएशन हुआ cos f इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि f हमारा x का फंक्शन है और x हमारा रेडियंस में है, एंगल हमारा रेडियन में होगा, तो हमारा ये फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है साइन x की पावर n, तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n मेरे थीटा के प्लेस पर है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 9 और साथ में होगा क्योंकि ये f है मेरे पास में f, फाइनल आंसर आएगा cos x की पावर 9, 9x रेज टू द पावर 8। यहाँ मेरा ये एंगल रेडियन में है, सपोज ये होता x रेज टू द पावर 9 डिग्री, तो आप क्या करते, पहले इस एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट करते बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय पाई बाय 180, और तब आप इसको फॉर्मूले को लगाओगे। अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है साइन ऑफ log x, तो इट इज f, साइन ऑफ f, थीटा के प्लेस पे मेरे पास फंक्शन है दैट इज log x, तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ फंक्शन f एंड डिफरेंशिएशन ऑफ f। नेक्स्ट लाइकवाइज, अगर cos f है तो माइनस साइन f डिफरेंशिएशन ऑफ f, cot f है तो माइनस cosec स्क्वायर f डिफरेंशिएशन ऑफ f, cosec f है माइनस cosec f, cot f डिफरेंशिएशन ऑफ f। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशंस करेंगे, डिफरेंशिएशंस करेंगे। नाउ हियर वी आर गोइंग टू लर्न रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें यदि डिफरेंशिएशन निकालना है a रेज टू द पावर f, इट इज वन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a रेज टू द पावर f, a रेज टू द पावर f का डिफरेंशिएशन होगा a रेज टू द पावर f log a into differentiation of f, where f is a function of x. For example, c, a आपका कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पर ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है। यदि तो फर्स्ट ऑफ ऑल c 3 रेज टू द पावर x, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a रेज टू द पावर x log a इंटू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यदि यहाँ f होता तो आप डिफरेंशिएशन करते x का, लेकिन मेरे पास यहाँ f नहीं है, x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x आपका 1 होता है, तो मेरे पास क्या आता है a रेज टू द पावर x log a। सो ये फॉर्मूला आप 11th क्लास में कर चुके हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू द पावर x क्या होता है, a रेज टू द पावर x log a होता है हमारा। बट अगर ये यहाँ पर x f से रिप्लेस हो गया है, तो डिफरेंशिएशन a रेज टू द पावर f का है a रेज टू द पावर f log a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f साथ में, तो हर स्टेप में वही कि हमारा f का भी डिफरेंशिएशन होगा। वही कंपोजिशन जो हमारी मेन ऐड हो रही है वो यही है कि जहाँ हमारा x f से रिप्लेस हो गया है,
आपने उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई और करना है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 9 रेज टू द पावर 6x, अगर मैंने डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो यहाँ पर मेरे पास a रेज टू द पावर x मेरा फंक्शन f है। दिस इज a रेज टू द पावर f। तो डिफरेंशिएशन देखो ध्यान से, a रेज टू द पावर f इंटू लॉग a, ये मेरा एक डिफरेंशिएशन कवर हुआ, फर्स्ट रो मेरा ओपन हुआ। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है f का, और मेरे पास f क्या है 6 रेज टू द पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से मेरे पास फॉर्मूला लगेगा a रेज टू द पावर x वाला। ये पहले स्टेप ऑलरेडी मेरे पास जो मैंने डिफरेंशिएशन कर लिए थे, अब इसकी डिफरेंशिएशन 6 रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन आएगी 6 रेज टू द पावर x इंटू लॉग 6। तो फाइनल ये डिफरेंशिएशन हमारा बनेगा। नेक्स्ट रूल आर रिगार्डिंग लॉग। आपको लॉग के कुछ फॉर्मूले याद हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग m इंटू n इज लॉग m प्लस लॉग n। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो लॉग uv का, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, लॉग uv, तो सबसे पहले आप लॉग uv के अंदर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे। यू विल राइट इट लॉग u प्लस लॉग v एंड देन यू विल फॉलो द डिफरेंशिएशन। अब यहाँ आप अलजबरा अप्लाई करोगे, अलजबरा अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग v करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया है, I need to find differentiation of x square into sin x. You can see here two functions are there. So this is type of u and v. तो पहले मैंने log की प्रॉपर्टी लगाई है log x square plus log sin x। अब हम इसका आगे डिफरेंशिएशन फॉलो करेंगे, इसमें अलजेब्रा लगाओगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। और यदि आपके पास टाइप है log ऑफ u अपॉन v, तो log m अपॉन n का प्रॉपर्टी आपकी होती है log m माइनस log n। यदि यहाँ log u अपॉन v है तो आप लिखोगे log u माइनस log v, देन यू विल कंटिन्यू द डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास है log x अपॉन साइन x, तो इट इज u एंड इट इज v। तो पहले आप log की प्रॉपर्टी लगाओगे log x माइनस log sin x। नाउ अप्लाई अलजेब्रा and find the differentiation. Next rules, rule third, यदि आपके पास है log f1 raised to the power f2, आप यहाँ याद करो आपने ये प्रॉपर्टी की है log m raised to the power n is n log m, it is log n log m। तो आपके पास सिमिलरली यदि यहाँ log आपका वन फंक्शन raised to the power another फंक्शन हो, वन फंक्शन रेज टू द पावर अनदर फंक्शन हो, तो आपकी प्रॉपर्टी लगेगी f2 log f1 log m रेज टू द पावर n n log m, f1 रेज टू द पावर f2 f2 log f1। यहाँ आपके पास फिर दो फंक्शन मिल जाएंगे, प्रोडक्ट आपके पास होगी फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यदि मेरे पास है मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है log x क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर 7x, तो वन फंक्शन रेज टू द पावर अनदर फंक्शन। फंक्शन कब है, जब उसमें वेरिएबल x है। यदि ये x नहीं होता तो ये कांस्टेंट ट्रीट होता आपका, लेकिन अभी ये जब तक x है तो वो फंक्शन बन गया आपका। तो फर्स्ट फंक्शन फंक्शन 1 रेज टू द पावर अनदर फंक्शन 2, तो आप पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी 7x log x क्यूब प्लस 2। अब आपके पास ये दो फंक्शन है, अब आप डिफरेंशिएशन u इंटू v करके लगाओगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ 7x इंटू लॉग एक्स क्यूब प्लस 2। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो। इस तरीके से आप इस डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करोगे। अगर लॉग में आपका फंक्शन इस तरह का है लॉग f1 बेस में f2 है, आपके पास में एक फंक्शन उसके बेस में भी आपका f2 है। यहाँ हमारा बेस नेचुरल e एक्सपोनेंशियल चलता है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल ना होकर हमारा कोई फंक्शन बेस में है तो हमारे इसकी प्रॉपर्टी हमारी होती है log f1 अपॉन log f2। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है log x टू द बेस sin x, तो पहले आप इसकी प्रॉपर्टी लगाओगे log x अपॉन log sin x,
और अब आपको यहाँ क्या फॉर्म मिल गई, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, रेशनल फॉर्म। अब आप यहाँ क्वोशिएंट रूल लगाकर इसकी डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट, यदि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है e रेज टू द पावर log f, तो आपका डिफरेंशिएशन आपका है f, e and log both will cancelled out, we can think of this, otherwise it is not like that, बट यहाँ आपका e और log एक दूसरे से कैंसल्ड, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। हम सिर्फ f का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है e रेज टू द पावर log x क्यूब, तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे डिफरेंशिएशन x क्यूब का निकालना है, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका 3x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। What is if it is log x to the base a, अगर बेस में कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं है, तब भी आपका फॉर्मूला उसी की तरह सिमिलर है जैसा हमने यहाँ किया था, इस स्टेप पे किया था हमने कि log f1 अपॉन log f2, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, log x अपॉन log a। बस व्हाट इज द डिफरेंस, दिस log a इज नाउ कांस्टेंट, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log a इज कांस्टेंट। तो आपका फिर डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन log a इज एज इट इज, एंड log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। इस प्रॉपर्टी में आपका x 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएशन फॉर हायर पावर्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस। चिल्ड्रन, प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया, cos f का डिफरेंशिएशन क्या है, cos f का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन f इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f। लेकिन अगर यहाँ पर आ गया cos रेज टू द पावर n f, तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, n, पहले आप सबसे पहले करोगे पावर के लिए डिफरेंशिएशन, फिर आप करोगे cos का डिफरेंशिएशन, और फिर आप करोगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आपका डिफरेंशिएशन बनेगा n cos raised to the power n minus 1 f and differentiation of cos f, where n is a constant and f is a function and x is in radians. So similarly, यदि cos की जगह आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin, cosec, tan, cot, tan, सभी के लिए सेम है आपका, पहले आप पावर के लिए डिफरेंशिएशन करोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, और फिर आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे यहाँ आपका है cosec n f, तो n cosec n minus 1 f, और साथ में डिफरेंशिएशन होगा cosec f का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे करना है डिफरेंशिएशन cos की पावर 25x9, सबसे पहले हम करेंगे पावर के लिए डिफरेंशिएशन, फिर करेंगे cos के लिए डिफरेंशिएशन, और फिर करेंगे x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन। तो 25 cos 24, ये एक पावर कम हुई, एंगल एज इट इज, तो हमने पहले किया पावर का डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos f, f इज x की पावर 9, तो cos x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर हम करेंगे x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आएगा दिस इंटू माइनस साइन x की पावर 9 इंटू 9x की पावर 8। अगर डिफरेंशिएशन करना है साइन क्यूब साइन x की पावर 7, यू कैन सी इट इज साइन क्यूब थीटा, ये आपका थीटा के प्लेस पर है, f है ये आपका, तो साइन क्यूब f, तो पहले 3 साइन स्क्वायर f, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन f, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ f आप करोगे। लाइकवाइज आप इसको भी देख सकते हो, cosec माइनस 7/3 f, थीटा के प्लेस पे आपके पास एक फंक्शन है, आपने उसका डिफरेंशिएशन करना है cosec n f, तो पहले आपकी n cosec n minus 1 f, फिर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो cosec f का, और फिर डिफरेंशिएशन करोगे f का। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करोगे। Here are few practice sums। आपने जितना भी अब तक लर्न किया है, इसे बेटा आपको एक नहीं 2-3 बार कम से कम देखने की जरूरत है, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ आए, और आप इसको 2 बार 3 बार देखने के बाद एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस जरूर करोगे।
तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यस, बिलीव मी चिल्ड्रन, आपका मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन आपने यहाँ से 11th में कर रखा है, 50% मिनिमम आपने कर रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, 19 क्वेश्चन है, ये 19 मिनट के क्वेश्चन हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे करने के बाद, एंड फिर आप ये एक प्रैक्टिस वर्कशीट मैंने दी है आपको, 66 क्वेश्चन 66 मिनट्स की है। देखो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका है फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 1/5। तो ये किस टाइप का फंक्शन है? एफ की पावर एन। एफ की पावर एन आप डिफ्रेंशिएट करोगे एन एफ की पावर एन माइनस 1। अगर मैं ये क्वेश्चन देखती हूँ तो ये है ए की पावर एफ टाइप का फंक्शन, और एफ में मेरे पास प्रोडक्ट में फंक्शंस हैं, मेरी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ तो ये कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ एफ। एफ पहले आप कॉस एफ के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आप एफ के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लाइकवाइज यू ट्राई हियर, इफ आई एम लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज रूट 10 एफ। पहले आप रूट के लिए करना, फिर 10 के लिए, और फिर एफ के लिए। So you try all these questions. Answer key of these questions I am sharing in the link. You can match your answers over there. So I hope you have understand what is chain rule. Enjoy learning, have fun. Bye.